السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کا نام میں ناول کے بیچ میں شیئر کروں گی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے معلوم تھا جاسیہ سلطان میرے ساتھ ایک دن ایسا ضرور کرے گی، یعنی وہ مجھے بغیر بتائے جاب چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اسے رکھ لیا تھا، اس بدتمیز اور نااہل لڑکی کو جسے وقت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس پہ انتہائی غصہ تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں، ایک تو وہ بنا بتائے چلی گئی تھی، دوسرے تنخواہ بھی زیادہ لے گئی تھی۔ ایڈوانس لینا تو جیسے اس کا مشغلہ تھا۔ اگر اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی انتڑیوں سے رقم وصول کر لوں گا۔ جب وہ ایک پائی بھی میری طرف نہیں چھوڑتی تو میں کون سا حاتم کا پوتا تھا؟ میں اس کا نمبر ملا کر تنگ آ گیا تھا، لیکن وہاں کوئی فون ریسیو ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی اچانک یوں ہی مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کا اتنا عادی کیوں ہو گیا ہوں، یعنی اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر یوسف کمال ماہنامہ زینت کا ایڈیٹر مجھ سے مسلسل کہانی کا تقاضا کیے جا رہا تھا نئے سال کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری کہانی زینت میں خاص تحریر کے طور پہ شائع ہو۔ وہ ایسی کون سی خاص تحریر تھی جسے میں زیر قلم لا کر اپنے قارئین کے دلوں میں مزید محبتوں کی جگہ پاتا؟ ایسا اچھوتا موضوع کہاں سے لاتا جو تہلکہ مچا دیتا؟ گزشتہ 11 سال سے لکھتے ہوئے مجھے کبھی اتنا خلجان نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ مسلسل لکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں ایک جیسا لکھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود لوگ مجھے پسند کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ میری کہانیوں کا رومان پرور ماحول تھا، جس میں قاری خود کو مکمل طور پر گم کر دیتا تھا اور ایک ذہنی سکون حاصل کرتا تھا۔ محبت ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر دور میں نئے انداز سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں نے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری کم ہمتی تھی۔ بنیادی طور پہ میں ایک بزدل اور وہمی شخص ہوں۔ میں نے کسی لڑکی سے باضابطہ محبت نہیں کی۔ کالج کے زمانے میں مجھے بہت سی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ میں چپکے چپکے انہیں دیکھا کرتا اور پھر اکیلے میں بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچتا اور پھر گھنٹوں سوچتا رہتا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ میری کم گوئی اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں مجھ پہ بے پناہ اعتماد کرتی تھیں اور اکثر اپنے چاہنے والوں کے قصے، خاص کر ان کی بے وفائیاں آ کر مجھے سنایا کرتی اور پھر ہلکی ہو جاتی۔ میں ان سب لڑکیوں کے لیے سفارت خانے کی ایک کتاب کی مانند تھا، جس میں سفیر آتے اور اپنے تاثرات قلم بند کرتے اور چلے جاتے۔ کبھی کسی سفیر نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کتاب محبت کی کہانیوں سے لبریز ہو گئی ہے۔ میں ہر اس لڑکی سے محبت کرنے لگتا تھا جو اپنا حال دل مجھ سے بیان کر کے جا چکی ہوتی، لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں واقعی بزدل شخص تھا جو بڑھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اور دوسروں کو بڑھتا دیکھ کر بھی۔ میری محبت کی حد صرف یہ تھی کہ میں ان رنگ برنگی تتلیوں کے خیالوں میں رہتا، رات کو سوتا تو ان سے ہم کلام ہوتا، حال دل بیان کرتا اور پھر اس طرح ہماری بے شمار ملاقاتیں ہو جایا کرتی۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اپنے محبوب کے ساتھ دنیا جہان گھوماتا۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ لڑکیاں جو مجھے کالج میں گھاس نہیں ڈالتی تھیں اور جو مجھے اپنی نفرت، تکبر اور سب سے بڑھ کر حسن کی وجہ سے اچھی لگتی تھی، میرا خیالوں میں زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا۔ میری کلاس فیلو تھی نیہا، بے پناہ ذہین، حاضر جواب اور ملکوتی حسن کی مالک۔ بڑے بڑے پھنے خاں اس کے سامنے دم دبا کر چلتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اچانک نیہا کی توجہ مجھ پہ ہوئی تو ایسی ہوئی کہ وہ ہمہ وقت میرے ساتھ نظر آنے لگی۔ میں اس کی رفاقت میں اپنے آپ کو بہت دبا دبا محسوس کرتا۔ حالانکہ نیہا کا رویہ میرے ساتھ بہت مخلص اور دوستانہ تھا، لیکن مجھے ان لڑکوں سے ڈر لگتا تھا جو نیہا کے پرستار تھے اور جو ہمیں ساتھ دیکھ کر حسد کا برملا اظہار کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا نیہا کو خاطر خواہ ان باتوں سے دلچسپی نہیں تھی،
जबकि मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थीं। मैं नेहा से कतराया कतराया रहने लगा। मैं जितना उससे दूर भागता था वो मेरे उतने ही करीब आती थी। मुझे उसकी कुर्बत से वहशत होने लगी। ये मेरे अंदर का एहसास कमतरी और बुज़दिली थी, वगरना हमारे माबैन वाज़ेह तौर पर किसी ने आने की कोशिश नहीं की थी। वो कॉलेज का आखिरी साल था। तब नेहा ने मुझे अपने वालिद साहब से मिलवाया। न जाने उसने मेरे मुताल्लिक क्या कहा था कि वो बड़े पुरतपाक अंदाज में मुझसे मिले। वो मेरे मुस्तकबिल के बारे में मुझसे बातचीत कर रहे थे। मेरी जात के मुताल्लिक पूछा और भी बहुत सारी बातें। मैं बड़े लड़खड़ाए से अंदाज में उन्हें जवाब दे रहा था। एक तो वजह ये थी कि मैं इस किस्म के तजर्बे से पहली बार गुजर रहा था, और दूसरी वजह उसके बाप का आलीशान घर, कीमती गाड़ी, पर्सनालिटी और गुफ्तगू का अंदाज। मेरा मुतासिर होना फितरी था। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और मुझे मौका दिया कि मैं बोलूं। मैं बोला जरूर था, लेकिन बड़ा वाजबी सा। मेरी इस हिचकिचाहट को वो क्या मायने देते। मैंने उनका ये तजब्ज़ा भी महसूस कर लिया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके घर में सख्त घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि सर्दियों का मौसम था और वो एक खूबसूरत शाम थी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था जल्द अज जल्द इस अमीर आदमी के चुंगल से आजाद हो जाऊं। हमारे दरमियान बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। नेहा हमारे दरमियान मौजूद नहीं थी, लेकिन इस गुफ्तगू का कोई हासिल नहीं था, क्योंकि वो बात करने के लिए सवाल पे सवाल कर रहे थे और मैं सिर्फ जवाब दे रहा था। मुझे याद है उन्होंने आखिरी सवाल मुझसे ये किया था, क्या तुम नेहा को पसंद करते हो? जी हाँ। इसका मतलब है उसे अपनाना चाहते हो? जी नहीं, मैंने घबराते हुए फौरन इनकार कर दिया। मुझे ये खौफ था ये अमीर आदमी मुझे बुरी तरह लान तान कर देगा और इनकार करके घर से निकाल देगा, सो मैंने पहले ही इनकार कर दिया। शायद इस वक्त मुझे अपनी इज्जत नफ्स ज्यादा अजीज थी। उस शख्स ने मेरा चेहरा देखा, फिर सोच कर बोले, अब तुम जा सकते हो। मैं तो पहले ही यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहता था। उनके कहने की देर थी और मैं ऐसे निकला कि अगर पीछे मुड़कर भी देखा तो पत्थर का हो जाऊंगा। घर आकर मैं यही सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे ऐसा ही करना था तो मैं नेहा के साथ गया ही क्यों। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन ये कैसी कमजोर सी मोहब्बत थी जिसका इजहार मेरे लिए नामुमकिन था। मैं अपने आप को बहुत देर तक लान तान करता रहा और इस तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन नेहा का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकला, बल्कि वो मजीद हवासों पे छाती गई। मैं चाहता तो उससे मिल सकता था, लेकिन वही बात, कबल इस वक्त अपनी हतक का एहसास और कमजोर कुव्वत इरादी की बदौलत मैं ये कदम भी नहीं उठा सका। वो यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। तब मुझे अपने क्लास फेलो से मालूम हुआ कि नेहा अहमद ने एक माजूर शख्स से शादी कर ली है। ये मेरे लिए बम का धमाका था। मैं लरस कर रह गया। क्लास फेलोज के दरमियान चहमगोइयां हो रही थीं। लड़के लड़कियां तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था जिससे नेहा ने शादी की है वो दोनों टांगों से मफलूज है, शक्ल भी वाजबी सी है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? शायद वो जिससे मोहब्बत करती थी उसकी बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये कदम उठाया है। तरह तरह की बातें सुनकर मेरे आसाब चल हो गए थे और मैं बारहा अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैंने वाकई नेहा से बेवफाई की है? मैंने तो कभी उससे कोई वादा नहीं किया था, फिर बेवफाई कैसी? फिर सुना नेहा अहमद अपने अपाहज शौहर के साथ बेहद खुश है। यकीनन वो कोई अमीर तरीन आदमी होगा। मैंने खुद को मुतमईन करना चाहा, लेकिन बहरहाल मुझे नेहा से मिलने का तजस्सुस बहुत था। हैरत की बात थी, इस तजस्सुस के पीछे मैं उसके घर तक चला गया। वो मुझे देख के हैरान हुई और मुस्कुरा कर बोली, शादी की मुबारकबाद देने आए हो या शिकायत करने कि मैंने तुम्हें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैं उसकी बात से घबरा गया। मैं ये पूछने आया हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? वो कहकहा मार कर तंजिया हंसी। हम इतना अरसा साथ रहे, तुम आपसे तुम पे नहीं आ सके। आज इतना जाती सवाल, अजीब सा लग रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी बात काट कर तेजी से बोला, मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो मुझसे ज्यादा तेजी से बोली। मैं खामोश हो गया, फिर तवक्कुफ से बोला,
मगर तुम किसी से भी शादी कर सकती थी। मेरे जैसा अधूरा शख्स तुम्हें क्या खुशियां दे सकता था? मैं तो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ा था। मेरे जवाब पे वो तलखी से हंस पड़ी। जो शख्स बज़ाहिर अधूरा नजर आता है वो मुझे बेपनाह खुश रख सकता है, हालांकि उसका कॉम्प्लेक्स तो सब पे वाज़ेह है और उसकी शख्सियत के साथ रहता है। क्या तुम बाबर से भी ज्यादा माजूर थे? मैं फिर लाजवाब हो गया। असद साहब, इंसान में एतमाद और हौसला हो तो उसकी जात का अधूरापन कभी आगे नहीं आता। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे शख्स के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूँ जो अधूरा होकर भी मुझे मुकम्मल मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से नवाज रहा है। न जाने उसने मुझसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। अगर मैं ये एहसास अपने अंदर जगा लेता तो वो आज अपने आप से यूं इंतकाम न ले रही होती। मैं नेहा से माफी मांगने के लिए बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन हर लफ्ज उसकी दिल शिकनी के आगे हकीर था। मैं नदामत और शर्मिंदगी के साथ साथ समीर के बोझ तले भी दब गया। मेरे पास उसे मुतमईन करने या अपनी सफाई के लिए कोई लफ्ज नहीं था। मैं घर चला आया, बेचैन, मुस्तरिब, और फिर बहुत सारे दिन गुजर गए और तब मैंने अपने एहसासात को कलमबंद किया। ऐसा बहुत कुछ जो मैं नेहा से कहना चाहता था। मैं लिखता चला गया। लिखने के बाद मुझे यकूना सुकून का एहसास हुआ और फिर मैं रोज ऐसा ही करता। मुझे नहीं मालूम किस तरह मेरी वो तहरीर जामे कहानी की शक्ल अख्तियार कर गई। उस कहानी का अंजाम इतना तकलीफ दे था कि मैंने कई बार उस कहानी का अंजाम लिखा, इस तरह जैसे कोई अपने आप को बार बार फांसी दे रहा हो। सरमद, जो मेरा बचपन का दोस्त था, अक्सर देखा करता था मैं फारिग वक्त में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। उसे शक था कि शायद मैं शायरी करता हूँ, क्योंकि मुझे शायरी से बेहद शगफ था और मैं अक्सर मुशायरों वगैरह में जाता रहता था। एक रोज उसके हाथ मेरा कागजों का पुलंदा लग गया। वो मेरी नसरी तहरीरें पढ़कर दंग रह गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी तहरीर छपवानी चाहिए। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। ये तो मेरा कथारसिस था, लेकिन वो बज़िद था कि वो छपवा कर रहेगा। मेरी बुज़दिली यहाँ भी सर उठाए खड़ी थी, लेकिन सरमद की हठधर्मी थी कि वो मुझसे पुलंदा छीन कर ले गया। उसके चचा यूसुफ कमाल माहनामा जीनत के मुदीर आला और हफ्त रोजा नवाए गर्दिश के एडिटर थे। उसने वो कागज का पुलंदा उन्हें जा थमाया। उन्होंने वो तहरीर अपने पास रख ली। कुछ अरसे के बाद सरमद जीनत का पर्चा लेकर आया। मेरी पहली तहरीर उसमें शाया हुई थी। मुझे अपनी कामयाबी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा खुश सरमद था। मुझे अपनी तहरीर के शाया होने की सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब नेहा ये तहरीर पढ़ेगी तो उसका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाएगा। और फिर मैंने इसी पस मंजर में कितनी बहुत सारी कहानियां लिख डाली। सिर्फ यही प्लॉट था, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से मैंने उस पर बेशुमार कहानियां लिख डाली और वो सब लोगों ने बहुत पसंद की। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। मुझे दूसरे रिसालों की तरफ से भी ऑफर्स आने लगी। मैं इंग्लिश में एमए कर चुका था और इंग्लिश लिटरेचर से मुझे खास लगाव था। अंग्रेजी नॉवेल अक्सर मेरे ज़ेरे मुताला रहते थे। इंग्लिश की ऐसी बहुत सी तहरीरें जिन्हें मैं चाहता था लोग पढ़ें। मैंने उन तहरीरों को उर्दू में तर्जुमा और तलखीस के साथ मुंतकिल किया। वो छपने लगी। जो 3 रसायल और थे जिनमें मैं कभी कभार लिख लिया करता था, लेकिन जब से मैंने सरिश्त में किस्तवार कहानी लिखना शुरू की थी, तब से मुझे एक मददगार की जरूरत पड़ गई थी। सॉरी, नॉवेल के बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में नॉवेल का नाम नहीं बताया था। नॉवेल का नाम है चांद ने बादल ओढ़ लिया। इसकी राइटर हैं मैमूना खुर्शीद अली। चलिए वापस चलते हैं नॉवेल की जानिब। जासिया सुल्तान से पहले मेरे साथ एक लड़की भी काम कर चुकी थी, जिसका नाम नाज था, जो मेरी तहरीरों की बजाते खुद दिलदादा और शौकीन थी। मैं जिस तरह बोलता था वो फर लिखती जाती थी। कभी उसने कोई नुक्ता एतराज नहीं उठाया, कभी मेरे जुमलों पे तनकीद नहीं की। ना ही उसे फालतू बोलने की आदत थी और ना फालतू खाने की, जबकि जासिया में ये दोनों खुसूसियात बदरजा उत्तम मौजूद थीं।
उसके बावजूद मैं ये कहूंगा जासिया नाज से ज्यादा ज़हीन और ज़ीरक थी। मैं ये तारीफ उसके मुंह पे नहीं कर सकता और ना ही कभी करूंगा। मुझे मालूम है जैसे ही मैंने उसे तौसीफी जुमलों से नवाजा, वो खट से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर देगी। उसकी सबसे बुरी आदत यही थी कि वो बात बेबात पैसे बढ़वाती थी। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ऐसी कौन सी जरूरियात थी जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती थी। शायद उसकी 17 सहेलियां जिन्हें भुगताना वो अपना शरई हक समझती थी। मैं समझता हूँ इंसान को हुकूक व फराइज में इतना आगे भी नहीं निकलना चाहिए। वो अपनी सहेलियों को अपना कीमती असासा समझती थी और लुत्फ की बात यह है कि ये नौकरी भी इसी बात का नतीजा है। हाँ, तो बात हो रही थी किसी ऐसी तहरीर की जिसे मैं लिखकर अपनी शोहरत और मोहब्बत में मजीद इजाफा कर सकूं। मैं किसी नए किरदार और नए प्लॉट की तलाश में था। अब की बार मुझे यूं लग रहा था जैसे ये खलजान कुछ न कुछ करके छोड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अपनी कहानियों का रोमान खुद भी खिसा पिटा लग रहा था। गुस्सा था तो सिर्फ इस वक्त जासिया पे। बिलाशुबा वो इस मसले का हल बखूबी निकाल सकती थी। अब वो नहीं थी तो मैं सख्त परेशान था और उस दिन को कोस रहा था जब मैंने उसे एक ज़हीन तरीन खातून समझ के उस पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया था। नाज के चले जाने के बाद मैंने जब अखबार में इश्तेहार दिया तो पहली उम्मीदवार यही मोहतरमा आई थी। यकीनन आपने इश्तेहार तो पढ़ लिया होगा। मैंने सिलसिला कलाम शुरू किया। जी हाँ, क्यों नहीं, इश्तेहार पढ़ा है तो यहाँ तक आई हूँ। आपको एक अदद शिस्ता उर्दू जानने और लिखने वाले की जरूरत है जो महारत से आपके बोले हुए लफ्जों को कलम बंद करता रहे। उसके साथ साथ लिखाई खूबसूरत और स्पीड अच्छी हो। रोजाना 4 घंटे, माहाना तनख्वाह 2000। उसने फर इश्तेहार सुना दिया। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैंने पहला सवाल किया। आपके इश्तेहार में तालीमी काबिलियत की डिमांड नहीं थी। मैट्रिक या एफए के उम्मीदवार भी रुजू कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इमला और लिखाई का दुरुस्त होना है। बहरहाल मैंने हाल ही में माशाल्लाह बीए का इम्तिहान दिया है और अभी रिजल्ट नहीं आया है। मैं बहुत ज्यादा ज़हीन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिखने की रफ्तार हमेशा ऐसी रही कि कभी भी किसी एग्जामिनर ने मुझसे पर्चा नहीं छीना। मैं 5-10 मिनट पहले ही पर्चा देकर उठ जाती थी। आप चाहे तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। यकीनन आप मायूस नहीं होंगे। बेशक ये मेरी पहली नौकरी है। इससे पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन बच्चों के वालिदैन इंतहाई कंजूस तबीयत के मालिक होते हैं। वो सिर्फ बच्चे पैदा करने में फराख्तिल हो सकते हैं, बाकी मामलात में इंतहाई मोहतात, कंजूस और दूर अंदेश। ला हौल वला। मैंने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ी। मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिदैन बखूबी मेरा खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इजाफी खर्च बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत नहीं। इसलिए मुझे इधर उधर देखना पड़ता है। आपका काम माकूल लगा तो चली आई, लेकिन आजकल 2000 में होता ही क्या है, मगर ना होने से होना बहुत बेहतर है। फिर हर काम में तरक्की के चांसेस भी तो होते हैं। सुभान अल्लाह, नौकरी मिली नहीं, तनख्वाह के बढ़ने पे नजर है। वो खामोश हुई तो उसे मेरी खामोशी का एहसास हुआ। आप बोलती बहुत ज्यादा हैं। वो हंस पड़ी। बोलना औरत की पैदाइशी मजबूरी है, लेकिन आप परेशान ना हो। जब मैं मसरूफ हो जाती हूँ तो मेरी तवज्जो सिर्फ काम की तरफ होती है, फिर मैं बोलती नहीं। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि उसे चाहे कितना ही मसरूफ कर लिया जाए, उसकी जबान बंद नहीं होती। ठीक है, आप टेस्ट दे दें। उसके बाद मैंने उससे चंद पैराग्राफ लिखवाए। उसने बहुत तेजी से लिखा। उसकी लिखाई वाकई खूबसूरत थी, बल्कि मुझसे भी कहीं ज्यादा। समझिए, आपकी जॉब पक्की है। कल से आपको आना होगा, लेकिन मेरे काम की एक शर्त है कि आप छुट्टी नहीं करेंगी। अगर मजबूरी हो जाए तो आपको कब्ल इस वक्त मुझे इत्तला करना होगा। याद रखिएगा, आपके अचानक गायब हो जाने से मेरे काम का बहुत हर्ज होगा। ओके सर। वो खुश हो गई और चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने इसका नाम तक नहीं पूछा था। वो बोलती ही इतनी ज्यादा थी कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगले रोज वक्त पे आ गई। कल आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा भी नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे जासिया सुल्तान कहते हैं। कहने को तो मुझे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये अम्मा की आला ज़र्फी कि वो मुझे सिर्फ
चील कहने पे ही इक्तफा करती हैं। चील? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। अम्मा का ख्याल है कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। आज से 22 साल पहले एक चील अपना अंडा हमारे घर की छत पे रख गई थी। मैं उसी अंडे की पैदावार हूँ। मुझे अपनी पैदाइश का ये मरहला बहुत अच्छा लगता है। आप सोच तो रहे होंगे कि मुझे चील क्यों कहा जाता है। बात तो हमारी अंदरूनी है, लेकिन अब आपसे क्या पर्दा। बचपन में हम अपने दादा के यहाँ रहते थे, यानी ताया चचा। बहुत बड़ी फैमिली थी, सबके 5-5, 6-6 बच्चे थे। सिर्फ मैं ही अपने वालिदैन की एक औलाद थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बदौलत सब इकट्ठे रहा करते थे। घर के सब अफराद जब एक वक्त में बैठकर खाना खाते तो हमेशा मेरी हक तलफी हो जाती थी। फिर मैंने उन सब के दरमियान छीन झपट करके खाना सीख लिया। मेरी इस इजाफी खूबी को अम्मा कभी नहीं सराहती। कहती हैं न जाने मैं नामुराद किस पे चली गई। हालांकि मुझे कहीं भी जाने का शौक नहीं। जहां भी जाती हूँ वापस आ जाती हूँ, लेकिन अम्मा हमेशा नाला रहती हैं। उसके इतने लंबे चौड़े जवाब पे मैं सर पकड़ कर रह गया और आइंदा सवाल ना करने का मुसम्मम अहद कर लिया। मेरा ख्याल है सारा वक्त बातों में ही गुजर रहा है। हमें कुछ काम करना चाहिए। क्यों नहीं सर? मेरी संजीदगी पे वो थोड़ी सी खजल हुई। मैं उसे अपनी हमराही में ऑफिस नुमा रूम में ले आया। उसने चलते हुए फिर सवाल किया, सर आप कोई किताब लिख रहे हैं जो आपको मददगार की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं अफसाने नॉवेल लिखता हूँ। मैंने उसे सफ़हात और कलम थमा दिया। शुक्रिया, कलम मैं हमेशा अपना इस्तेमाल करती हूँ। उसने सफ़हात ले लिया और कलम पर्स से निकाल लिया। ये कलम मुझे मेरी दोस्त अनीला ने दिया था। वो मेरी बचपन की दोस्त है। ये कलम मेरे साथ होता है तो गोया मुझे उसके होने का एहसास रहता है। अच्छा एहसास है। मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। वो बादा वो सहेली की हिस्ट्री ना लेकर बैठ जाए। अभी हमें काम करते हुए 8 दिन हुए थे कि जासिया ने एक सवाल उठाया, सर आप मोहब्बत के मौजू पे बहुत ज्यादा लिखते हैं, क्या ये आपका मनपसंद मौजू है? जासिया कोई पहला फर्द नहीं थी जिसने ये सवाल किया था। अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते थे। कह सकते हैं, मैंने हंसकर टाल दिया। अगर आप चाहें तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, उसने चंद दिन के बाद कहा। मैं टेंशन में इजाफा नहीं करना चाहता। मेरा जवाब हमेशा की तरह मुख्तसर था। आप क्या समझते हैं, इन बातों से टेंशन दूर हो जाती है? किसी की टेंशन दूर हो या ना हो, कम से कम मेरी तो हो जाती है। मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसल गया। तो गोया आप लोगों को अपना खिलजान दे रहे हैं। उसने बात पकड़ ली। मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया। अगर ऐसा होता तो लोग मेरी तहरीरों की डिमांड ना करते। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी तहरीरों में ऐसा क्या है जो लोग इतना पसंद करते हैं। सर, ये कंप्यूटर का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर। इन मावराई किस्सों से हमें बाहर आना चाहिए, और ऐसा आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। पाकिस्तान को मोहब्बत की नहीं, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस बेजा मोहब्बत ने नौजवान नस्ल को निकम्मा कर दिया है। ये मोहब्बत सिर्फ मईशत पे बोझ है और कुछ नहीं। मोहब्बत मईशत पे बोझ है? मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। यस सर, मोहब्बत क्या देती है? नस्ल में इजाफा, गैर जरूरी बढ़ती हुई आबादी। मईशत पे बोझ नहीं तो और क्या है? ओह माय गॉड, उसके नजरिए पे मेरा सर चकरा गया, लेकिन उसकी गुफ्तगू अभी जारी थी। सर, आप चाहें तो अपनी कहानियों में कुछ और वैरायटी भी डाल सकते हैं जो इंसानियत के हकीकी पहलू हैं। और वैसे भी अदीब माशरे का तर्जुमान होता है। मोहब्बत क्या माशरती मौजू नहीं है? मैंने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया था। क्या सिर्फ मोहब्बत ही माशरे का मौजू है? और भी बहुत सारे मौजू हैं जिन्हें आप चाहें तो अहाता तहरीर में ला सकते हैं। हो सकता है आपकी शोहरत को मजीद जान लग जाए। उसने कायल करने वाले अंदाज में कहा तो मैं मसलहतन खामोश हो गया। ओके, मैं आपकी तजवीज पे यकीनन गौर करूंगा। थैंक यू सर। उसने फूली सांसों के साथ इस तरह शुक्रिया अदा किया गोया केटू सर कर लिया हो। और फिर अगले रोज अजीब वाकया हुआ। जासिया के साथ 4-5 औरतें आई थीं। ये सब कौन है? मैंने जासिया से पूछा। औरतें हैं सर। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन आई कहां से हैं? अपने अपने घर से सर। मेरा सर घूम गया, लेकिन जासिया ने इसकी जरा भी परवाह न की।
सर, ये इंतहाई दर्दमंद और खस्ता हाल औरतें हैं। इनकी कहानी सुने तो आपका दिल पाश पाश हो जाएगा और आपके कलम में वो सोच पैदा होगा कि आपके कारीन आपके और करीब हो जाएंगे। हर एक की एक से बढ़कर एक दर्दनाक कहानी है। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मासी बतूल गमज़दा है। मासी बतूल, तुम आगे आ जाओ। शट अप जासिया, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर आपने मेरे साथ संजीदगी से काम करना है तो करें, वरना आप बेमायन खस्ता हाल कहानियों के तशरीफ ले जा सकती हैं। मैंने उन सब खवातीन की तरफ इशारा किया। उसके बाद मैं रुका नहीं और दूसरे कमरे में चला गया। इतनी करख्तगी का इजहार मैंने पहली बार किया था। 10 मिनट के बाद जासिया मेरे कमरे में आई। आई एम सॉरी सर, मैंने तो आपकी मदद करना चाही थी। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो एकदम खामोश हो गई। आप जिस काम के लिए आई हैं सिर्फ वही काम करें। सोचने और कहानियां ढूंढने का काम मेरा है। मैं क्या लिखता हूँ और क्या लिखना चाहता हूँ वो पसंद किया जाता है या नहीं, ये मेरा और मेरे कारीन का मसला है, आपका सरदर्द नहीं। अब आप जा सकती हैं। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दें, हम कल काम करेंगे। जासिया चली गई और मैं यूं ही अकेला बेसारी से टहलता रहा और फिर बाइक की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। दरअसल पसे पर्दा मुझे अपनी कहानी पे गुस्सा था, जो ऐसे मोड़ पर आकर फंस गई थी जिसका हल मेरे इख्तियार से बाहर था। ऐसे में जब लिखने का इर्तिकाज टूटता था तो मेरे सर पे यूं ही वहशत सवार हो जाती थी। फिर या तो मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता या यूं ही सड़कें नापता फिरता। कभी कभार इंग्लिश मूवीज भी देख लेता था, सरमत को बुला लेता और ताश के पत्तों में उलझ जाता। इस वक्त कुछ भी जी नहीं जा रहा था सिवाय इसके कि सड़कें नापी जाएं। 2 रोज इसी तरह गुजर गए। जासिया समझ रही थी कि उसकी वजह से मेरी ये कैफियत है। उसने आज फिर मुझसे माजरत की। मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूं, बस मेरा दिल उचाट हो रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया। उसने बेतकल्लुफी से खिड़कियों के पर्दे सरका दिए। सर, मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। अगर आप पसंद करें तो हम आज नीचे लॉन में बैठकर काम करें। मैंने खिड़की से बाहर निगाह डाली। मौसम वाकई दिलफरेब हो रहा था। सुरमई बदलियां आसमान पे मंडला रही थी और बड़ी प्यारी खुनक हवा चल रही थी। बाहर का मौसम उरूज पे था। मैंने किसी ख्याल के तहत हामी भर ली। हम दोनों नीचे आ गए। उसने सताइशी अंदाज में लॉन की तरफ देखा। सर, आपका ज़ौक बहुत आला है। मैं मुस्कुरा दिया, फिर गुलाब की बाढ़ को छू कर बोला, ये ज़ौक मेरा नहीं किसी और का है, जैसे ये घर मेरा नहीं किसी और का है। उसने सवालिया निगाह मुझ पे डाली। मैं समझी नहीं। मैं इस घर में बहैसियत किराएदार ऊपर की मंजिल में रहता हूँ। मालिक मकान पहले नीचे रहते थे, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैं लॉन की देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए यहाँ माली आता है। और आपके वालदैन, बहन भाई? वालदैन बहुत पहले इंतकाल कर गए थे। एक बहन है जो क्वेटा में रहती हैं, 2 भाई कराची में रहते हैं। बहनोई चमड़े का काम करता है और भाई कपड़े का अलहदा अलहदा बिजनेस करते हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तीनों बहन भाई मुझसे बड़े हैं और शादीशुदा हैं। तालीम सबसे ज्यादा मैंने हासिल की थी, सो इस तरफ आ गया। चाहता तो मैं भी बिजनेस कर सकता था। कराची में मेरा जाती घर है जो हमारा आबाई घर था। वालदैन ने मेरे नाम कर छोड़ा है। कराची का माहौल मुझे पसंद नहीं आया है, शोर हंगामा। मैं सुकून की वजह से इस्लामाबाद आ गया। कलम से दोस्ती मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मेरा जरिया माश और तन्हाई का साथी बन गया है। सर, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इतना जाती सवाल उसने बेधड़क पूछ लिया था। मैं उसे देखकर हंस दिया। शादी के बारे में अगर मैं संजीदगी से सोचता तो शायद वो भी हो चुकी होती, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। हम दोनों चहलकदमी करते करते कुर्सियों पे बैठ गए। इसका मतलब है सर, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अफसानवी किरदारों के साथ रहते रहते आपको अपनी तन्हाई का एहसास ही नहीं होता। मैं तन्हा कहाँ हूँ? मेरे दिल में टीस सी उठी। नेहा का ख्याल एक बार फिर पूरी तवानाई से मेरे आसाब पे छाने लगा था। मेरा तखय्युल, मेरी सोचें, मेरा कलम और सबसे बढ़कर मेरे चाहने वालों का प्यार। क्या मैं फिर भी अकेला हूँ? सर, आपने वो गाना सुना है, मैं पल दो पल का शायर हूँ?
पल दो पल मेरी कहानी है। साहिर लुधियानवी ने लिखा है उसे। जानता हूं सर, लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी तख्लीक से प्यार करते हैं। कल आप लिखना छोड़ देंगे, कौन आपको याद करेगा? आप कैसे कह सकते हैं उन चाहने वालों का प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा, जबकि आपने हमेशा कलम के जरिए ही साबित किया है मोहब्बत के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। क्या तुम इस बात से इनकारी हो? सर, मोहब्बत इतनी जरूरी भी नहीं होती। तो फिर जरूरी क्या है? सिर्फ पैसा जरूरी है। बड़ी मादियत पसंद है आप, हालांकि पैसा जरूरत पूरी करता है और जरूरत ही सुकून मुहैया करती है। वो तेजी से बोली। इस तरह मोहब्बत भी एक जरूरत ही है। यानी आपकी 17 सहेलियां आपकी जरूरत हैं, आपको उनसे मोहब्बत नहीं? पढ़ना तो मेरी मजबूरी था और मशागिल मेरे बहुत सारे थे। सहेलियां बनाना मेरा महबूब तरीन मशगला है। अच्छा हल्का अहबाब किसे पसंद नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें तोहफे लेना और देना, और सबसे ज्यादा अच्छा जब लगता है जब वो मेरे गिर्द होती हैं और मुझे उनमें मुमताज हैसियत हासिल होती है। तब मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। अपनी जात का एहसास मेरी जिंदगी की जरूरत है और ये एहसास मेरे अखलाक और मेरे तर्ज अमल पे बहुत अच्छा असर डालता है। मोहब्बत को किस तरह उसने सिर्फ जरूरत पे मौकूफ कर दिया था। मैं दंग रह गया। मैं अगर मोहब्बत के मामले में बुज़दिल था तो ये लड़की खुद पसंद थी, यानी सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करने वाली। आपकी अक्सर कहानियां मोहब्बत नहीं बल्कि जुनूनी मोहब्बत का शिकार नजर आती हैं। ऐसा आजकल कहाँ होता है, कोई किसी के लिए इतना मुखलिस नहीं होता, और खास तौर पे मर्द हजरात, नामुमकिन। इसलिए मुझे ये सब कुछ बकवास लगता है। इसलिए कि तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की, मैंने जलकर कुछ अजीब से अंदाज में कहा। सर, आपने की है? वो झट बोली। हाँ, अपनी बुज़दिली से। मैं कह देना चाहता था लेकिन कहा तो सिर्फ इतना। शायद यकतरफा। उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा और फिर हंस पड़ी, इस तरह जैसे आपका ये हीरो कर रहा है। मैं आजकल जिस कहानी में उलझा हुआ था उसने उसी की तरफ इशारा किया। मेरे सारे हीरो मेरी तरह ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कामयाब करा देता हूँ क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है। आजकल आप जो कहानी लिख रहे हैं उसे ही ले लीजिए। हीरो एक लड़की से शदीद मोहब्बत करता है और उससे इजहार नहीं कर सका। हीरोइन की शादी हो गई, हीरो ने खुदकुशी का मंसूबा बना लिया। अव्वल तो एक इंसान की खातिर यूं जिंदगी बर्बाद करना कहाँ की दानिशमंदी है। फिर इधर हीरोइन हीरो के जज्बों से नावाकिफ रही। ये कैसे हो सकता है, एक शख्स उसे इतनी शिद्दत से चाहता रहा और वो बेखबर रही। वो खबरदार है लेकिन तमन्ना करती है कि हीरो पहल करे, लेकिन आपने कहानी में तो जाहिर नहीं किया। उसका ये रद्द-ए-अमल शादी के बाद आता है। ये कैसी बात है सर? क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं है? खुश है, लेकिन मैं रुक गया। जासिया के सवाल ने मुझे चौंका दिया था। मैंने बगौर उसकी तरफ देखा और जानबूझकर बात बढ़ाई। जिस शख्स से उसकी शादी हुई है वो एक मारूफ बिजनेसमैन है। लड़की बहुत हसास है, मामूली मामूली खुशियों पे खुश होने वाली। वो शौहर की मसरूफियात और बेतवजही से बेजार हो गई है। अब मासी की तरफ देखती है तो पछताती है और ख्याल करती है उसे सलमान को यूं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप हीरोइन को वापस पहले हीरो की तरफ पलटा देना चाहते हैं कि वो उससे मोहब्बत करता था। एम आई राइट सर? मसला तो सारा यही है। तुम बताओ कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने जासिया को अपने साथ मैदान में उतार लिया। वो कुछ देर रुकी, फिर सोच कर बोली, बात गौर करने की है। मसला ये नहीं है कि उसे हीरो की तरफ पलटना चाहिए या नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो ये कहानी मुआशरे के कल्चर से हटकर होगी। शादीशुदा औरत का ऐसा तर्ज अमल हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। मैं उसकी बात गौर से सुन रहा था, दरमियान में काट कर बोला, ये बात मेरी नजर में भी है और इस किस्म की कुछ बातें हैं जो कहानी को आगे चलने से रोक रही हैं। सर, आप इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए कि लड़की पहले हीरो में दिलचस्पी लेती थी या नहीं। वो तेजी से बोली, वो लड़की सिर्फ मोहब्बत की तमन्नाई है। अगर उसे ये मोहब्बत अपने शौहर से मिल जाती तो वो कभी भी माजी की तरफ ना देखती। वो एक मशरकी और बाहया लड़की है।
तभी उसने शादी से पहले सलमान की मोहब्बत को कबूल नहीं किया था। वो कुछ देर रुकी, फिर सोच कर बोली, ऐसे में आप अगर सलमान के किरदार को थोड़ा सा तब्दील कर दें, उसकी शख्सियत में कुछ बोल्डनेस और जारहानापन आ जाए, और फिर ऐसे में आप हीरोइन के शौहर के साथ उसके ताल्लुकात जाहिर कीजिए, यानी सलमान का उनके घर आना जाना, और बस कहानी मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गई। यूं लगा जैसे कोई बोझ था वो सरक गया। जासिया बोल रही थी और मेरा जहन अपनी कहानी की तरफ बह रहा था। मेरी कहानी अपना मकसद खोए बगैर मेरे जहन के दरीचों में महवे सफर थी। मुझे नहीं मालूम था कि जासिया इतने काम की लड़की है। वो मुताला इतनी बारीक बीनी से करती है कि उसकी खामियां और खूबियां बआसानी महसूस कर सकती है, वगरना उससे पहले मैं यही समझता रहा कि वो लापरवाह और बेजा तनकीद करने वाली लड़की है। लेकिन आज मैं वाकई उसकी ज़हानत और सलाहियत से मुतारिफ ही नहीं, मुतासिर भी हुआ था। मेरी सारी कल्फत धुल गई। दिल चाहता था अभी कलम कागज लेकर बैठ जाऊं और उसे किसी अंजाम तक पहुंचा दूं। नित नए सीन मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैंने जासिया की तरफ देखा जो कि मुझे ही देख रही थी। थैंक यू सो मच। मैंने फराख दिली से उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी ज़हानत की तारीफ की तो वो खुश हो गई। मुझे नहीं मालूम था ये तारीफ मुझे आगे चलकर महंगी पड़ेगी। अगले महीने मेरी कहानी की शाया हुई। कारीन के खतूत का अंबार लग गया। उनकी पजीराई और दादो तहसीन मेरे लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन अपनी तारीफ मुझे हमेशा ही अच्छी लगती थी। जासिया भी मेरे साथ बैठी खत पढ़ रही थी। कहने लगी, ताजमहल मजदूरों ने बनाया था और नाम किसी और का आता है। मैं वाकई नहीं समझा। सर, कैसी अजीब बात है, आपको इतनी मोहब्बतें वसूल हो रही हैं और आपने हमारा मुंह भी मीठा नहीं कराया। मुझे हंसी आ गई। हाँ, तुम्हारा हक तो बनता है। इस कहानी को मुश्किल से निकालने वाली तुम हो। बताओ, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं सर, कुछ मंगाने की जरूरत नहीं। मेरी फराख दिलाना पेशकश पर वो खिसिया सी गई। नहीं भाई, तुम्हारा हक तो बनता है। सर, मैं डाइट की वजह से मीठे का परहेज करती हूँ। तो फिर अगर आप ज्यादा इसरार कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए दे दीजिए। वो कुछ अटक कर झिझक कर बोली तो मैंने उसकी तरफ बड़ी हैरत से देखा। सर, बात यह है कि आसमा का मंगेतर है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके लिए आपने दवाइयां खरीदनी हैं? नहीं नहीं, जरा जाना है अयादत के लिए, कुछ फूल लेकर। फूल तो सस्ते ही आते हैं। दरअसल मैंने अपने लिए कॉटन का सूट भी लेना है। नए कपड़ों से शख्सियत का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। मैंने चुपचाप 500 रुपए उसे दे दिए। उसके कुछ अरसे के बाद उसने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए। कहानी लिखने के दौरान मेरी कुछ आदत सी बन गई थी उससे मशवरा करने की, बल्कि ये आदत उसने खुद डाली थी, ख्वाह मखा मेरे काम में टांग अड़ाकर। और फिर उससे उसने फायदा भी खूब उठाया। 1000 रुपए बल्कि जब उसने देने का नाम नहीं लिया तो नाचार मुझे मांगने पड़े। सर, वो पैसे तो खुद ब खुद कट गए थे। कट गए? सर, इस कदर तो मशवरा लेते हैं आप मुझसे, अब वो क्या बचे होंगे? उसकी लापरवाही पर मैं जज्बत सा होकर रह गया। फिर मैंने खुद ही फैसला किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं, क्योंकि वो एक सही लड़की थी, मेरे साथ काम करती रहती तो मेरा फायदा ही फायदा था। मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी ताकि वो मशवरों की फीस अलहदा न मांगे, लेकिन उसे तो जैसे चस्का पड़ गया था। जासिया की अव्वल रोज से आदत थी, अपनी सहेलियों का जिक्र फर्जी इबादत समझकर बिला नागा मुझसे करती थी। अब मैंने तो उससे नहीं कहा था कि आते ही वो अपनी किसी न किसी सहेली का किस्सा जरूर सुनाए, यूं जैसे कोई ताजा अखबार सुनाया करता है। शुरू में तो मुझे उसकी ये चपड़ चपड़ बहुत बुरी लगती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि उसकी सहेलियों के किरदार और उनके इर्द गिर्द के किरदार बड़े दिलचस्प हैं। मैं उन्हें लिखने लगा। जुल्म ये हुआ कि उसे इल्म हो गया। कहने लगी, सर, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं आपसे बरसबीले तस्करा जिक्र करती हूँ और आप उनसे कहानियां बना लेते हैं। मैं लम्हों में भाप गया इस बात के पीछे यकीनन पैसों की ख्वाहिश पिन्हा है। आखिर बिच्छू के डंक से कछुआ होशियार हो ही गया था। मैं साफ मुकर गया। तुम्हारा वहम है, हो सकता है ये कहानी किसी और की हो, और अक्सर ऐसा हो जाता है।
کہانیوں کے کردار حقیقی کرداروں سے مطابقت رکھنے لگتے ہیں، سبھی تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن اس نے مجھے بخشا نہیں۔ اگلے چند دن کے بعد اس نے مجھ سے 1,500 روپے ادھار مانگے اور اپنی سخت مجبوری ظاہر کی۔ میں ادھار دینے پہ ذرا بھی رضامند نہیں تھا، لیکن وہ بضد تھی۔ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آ گئی؟ اور پھر ابھی تو تنخواہ لی ہے تم نے۔ سر، میری جیسے ہی کمیٹی کھلے گی میں آپ کو رقم لوٹا دوں گی، مگر سر پلیز، میں اپنی ہمدردانہ فطرت کے آگے مجبور تھا۔ دیکھو، یہ رقم جلد لوٹا دینا، میں نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیں سر آپ۔ اور پھر پیسے لے کر وہ خود اتنی بے فکر ہوئی۔ 1، 2 اور 3 ماہ گزر گئے۔ جاسیہ، تم نے میرے پیسے نہیں دیے؟ سر کیوں نہیں، لیکن جس وعدے پہ لیے تھے اسی پہ دوں گی، اور ابھی میری کمیٹی نہیں کھلی۔ آخر تمہاری یہ کمیٹی کب کھلے گی؟ انشاءاللہ جیسے ہی ڈلے گی پہلی میری ہوگی۔ میں ممبر اکٹھے کر رہی ہوں، بس آپ دعا کریں مجھے ایماندار ممبر ملیں۔ مجھے تو آنکھ لگ گئی۔ انشاءاللہ یہ رقم تمہاری تنخواہ میں سے کٹے گی۔ میں نے بھی اسی کی طرح کہا، حالانکہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا۔ سر، آپ تو بے اعتباری پہ اتر آئے۔ میں آپ کی رقم لے کر بھاگ تو نہیں رہی، اور کون سا میں نے وہ رقم خود استعمال کی ہے؟ اپنی سہیلی کو ادھار دی تھی۔ تم خود کتنی بڑی لینڈ لارڈ ہو جو لوگوں کو مقروض کرتی پھرتی ہو۔ بس سر، کسی کی مدد کرنا بھی تو ثواب ہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اسے جیسے ہی پہلے کمرشل کا چیک ملے گا وہ میرا قرض لوٹا دے گی، اور میں آپ کا۔ کمرشل کا چیک؟ جی سر، میری سہیلی نیشا ہے نا جو ماڈل بن گئی ہے، اور سر میں آپ کو بتاؤں اس کا کمرشل ابھی آن ایئر بھی نہیں گیا، اور فلموں کی آفرز دھڑا دھڑ شروع ہو گئیں۔ میں بتا نہیں سکتی وہ کتنی خوش ہے، اور میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یعنی میری رقم ڈوب چکی ہے، اب مجھے صبر کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے اچانک چھٹیاں شروع کر دیں۔ 4 چھٹیوں کے بعد آئی تو بے حد افسردہ تھی۔ میں نے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کسی سہیلی ہی کا غم ہوگا۔ اب تو مجھے اس کی ذاتیات چھیڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کہیں وہ ادھار نہ مانگ لے۔ لیکن بس میرے ایک سوال کرنے کی دیر تھی اور اس نے پوری داستان امیر حمزہ سنا دی۔ داستان اس کی ماڈل بننے والی سہیلی کی تھی۔ اتنی سنسنی خیز کہانی میں 1.5 گھنٹہ دم بخود سا سنتا رہا۔ وہ واقعی پریشان اور افسردہ تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ زیادہ فکر نہ کرے۔ قصور تمہاری سہیلی کا ہے۔ گلیمر کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسے اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں شریف لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ میرے دلاسے سے اسے کتنی تقویت ملی۔ ہاں، البتہ اس کی سنائی گئی کہانی مجھے کسی نفع کی طرح لگی۔ میں نے دنوں میں وہ کہانی لکھ ڈالی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کہانی میری تقدیر بدل دے گی۔ ایک مشہور و معروف ڈرامہ پروڈیوسر کا فون میرے پاس آیا۔ وہ میری کہانی کو ڈرامائی تشکیل دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنا اوپر چلا جاؤں گا۔ شہرت تو شہرت، دولت بھی خوب ملی۔ جاسیہ میرے سر ہو گئی۔ سر، یہ کہانی تو میری سہیلی کی تھی، آپ نے اسے میری مرضی کے بغیر کیوں لکھا؟ کیوں؟ کیا تم نے اس کہانی کے جملہ حقوق محفوظ کیے ہوئے تھے؟ میں چڑ کر بولا۔ لیکن سر، یہ اخلاقاً جرم ہے۔ وہ بھی طیش میں آ گئی۔ مجھے معلوم تھا، اسے پتا چل گیا ہے کہ یہ کہانی ڈرامہ بننے والی ہے، اس لیے وہ کوئی موٹا مطالبہ کرنا چاہتی ہے اور مجھے روپ دکھا رہی ہے۔ لیکن میں روپ میں کیوں آتا؟ اخلاقاً جرم تو یہ بھی ہے کہ تم اپنی سہیلیوں کے ذاتی قصے مجھے سناتی ہو۔ میں نے کہہ دیا، اگر تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہاری کہانیاں چرا لیتا ہوں تو اپنے منہ میں تالا لگا کر رکھا کرو۔ میں تمہاری منتیں نہیں کرتا کہ اپنی سہیلیوں کے قصے مجھے سناؤ۔ اور کیا یہ کہانی ہو بہو ایسی ہے جیسی تم نے بتائی تھی؟ ہو بہو نہیں ہے، لیکن مرکزی خیال تو میرا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ مرکزی خیال تم کسی اور کو دے کر دیکھ لو۔ اگر وہ ایسی کہانی لکھ لے تو مجھ سے بات کرنا، یا پھر تم خود بھی کوشش کر لو۔ خواہ مخواہ تم میری شہرت میں شریک بن رہی ہو۔ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، لیکن پاکستان کس نے بنایا تھا؟ قائد اعظم نے۔ یہاں جو محنت کرتا ہے وہی منظر عام پر ہوتا ہے۔
अगर तुमने मेरे साथ काम करना है तो करो, वरना रोजाना ये एहसान का टोकरा मेरे सर पे रखने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले भी मशहूर था और बाद में भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझ सकता था कि मैं इतनी जल्दी बदलिहाज कैसे हो गया था। शायद शोहरत का नशा ही ऐसा होता है। लेकिन वो कौन सी लिहाज वाली थी? उसने मेरे 1,500 रुपए ऐसे हजम किए थे कि डकार भी नहीं ली। ड्रामा ऑन एयर जा चुका था। मेरे मद्दाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। दूसरे प्रोड्यूसर भी मुझसे राब्ता कर रहे थे। इसी दौरान इदारे ने मेरे एजाज में बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया था। मैं ये कहूंगा कि यह अरसा मेरी शोहरत को 4 चांद लगा गया। न जाने जासिया की वजह थी या नसीब ही इस वक्त उरूज पे था। मैं कुछ नहीं कह सकता। जासिया के हक में मेरा कुछ भी कहना महंगा पड़ सकता था, लेकिन चूंकि सरमद जासिया की लालची तबीयत से ना वाकिफ था, जब भी मिलता मुझसे यही कहता, आजकल तो हवाओं में सफर कर रहे हो, और मैं हंसकर चुप हो जाता। एक दिन उसने जासिया के सामने मेरी तारीफ यूं की, पहले भी तुम लोगों के दरमियान मशहूर थे, लेकिन जब से तुम्हारी ये कुलीग आई है तुम मुमताज हो गए हो। मिस जासिया यकीनन तुम्हारी अच्छी हेल्पर साबित हो रही हैं। ये मेरी नहीं, जासिया की तारीफ थी। मुझे आग लग गई और जासिया को कलफ। मुस्कुराकर बोली, मगर ये बात आपका दोस्त नहीं मानता। हालांकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर्सनालिटी जितनी मशहूर होती है, सेक्रेटरी उससे ज्यादा मशहूर हो जाती है। ओहो, पहले तो पैसे की हवस थी, अब मोहतरमा को शोहरत का शौक भी चढ़ा रहा है। सोचता हूँ इसे 9-2-11 कर ही दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में जासिया फारिग होकर चली गई तो मैंने सरमद को पकड़ लिया। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लोमड़ी के सामने इतनी बकवास करने की? लोमड़ी? सरमद ने अचंभे से मुझे देखा। हाँ, मैंने तुनक कर कहा। यार रहने दो, अच्छी खासी लड़की है। अच्छी खासी होगी तुम्हारे लिए, मुझे तो बिल्कुल चील लगती है, पाई पाई पे चपटने वाली। सरमद हंस पड़ा। वो सारी सूरत हाल से वाकिफ था। बहरहाल जो कुछ भी है, काम तो तुम्हारे बहुत आ रही है। हाँ, ये तो है, कई बार धमकी दे चुका हूँ, लेकिन काम छोड़कर नहीं जाती। लगता है इससे अच्छी नौकरी इसे कहीं नहीं मिलेगी, और इससे अच्छी मददगार तुम्हें भी कहीं नहीं मिलेगी। खूब कैश कर रहे हो। ये मेरी जहानत है, उसकी नहीं। मैंने बात खत्म कर दी। जासिया के साथ काम करते हुए मुझे पता चल गया था कि मैं फितरतन लालची आदमी हूँ, लेकिन मैं इसका एतराफ नहीं कर सकता था और ना करना चाहता था। मेरा ख्याल है कोई भी शख्स अपना मनफी पहलू जाहिर करना नहीं चाहता था, और खास तौर पे मुझ जैसी मशहूर शख्सियत। लेकिन जासिया को मेरी इस फितरत का बखूबी अंदाजा हो गया था, इसलिए वो मुझे हीले बहानों से ब्लैकमेल कर रही थी, और अक्सर चाहती थी कि मैं उसकी सेहानत की बार बार तारीफ करूं। वो जो भी मशवरे दे मैं उसका मशकूर हो जाऊं, और साथ साथ मकरूज भी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता? अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं उससे सिर्फ इतना ही काम लूंगा जितने के लिए मैंने उसे रखा था। और वो क्या समझती है, क्या मैं उसके बगैर काम नहीं कर सकता? आजकल मैं वैसे भी बहुत खुश था। तबीयत मेरी बड़ी रवां थी और जहन भी हशाश बशाश था। जासिया को शायद ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था, इसलिए वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिन तक तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि उसके जाने से मुझे कितना फर्क पड़ रहा है। मैं अपने कामों में मसरूफ रहा। कुछ दिन के बाद मुझे पता लगा कि जितनी फसल उगी थी सब कट चुकी है। अब जमीन को नए बीजों की जरूरत है। ऐसे में मैं अपने आप को खाली छोड़ देता था। फसल मौसम के साथ ही पकती है, इसमें उजलत से काम नहीं चलता। लेकिन यूसुफ कमाल के टेलीफोन ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी, और मैं कोई तहलका खेज कहानी लिखना चाहता था। ऐसे में मुझे जासिया की सख्त जरूरत महसूस हुई। वही मेरी मदद कर सकती थी। तकरीबन 21 दिन के तवील इंतजार के बाद मैंने इरादा किया कि उसके घर जाऊं और पता करूं कि क्या वजह है। मैं आज तक उसके घर नहीं गया था, हालांकि उसने मुझे कई बार ऑफर की थी। उसका घर अंदरूने शहर में था। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर घर का जायजा लिया। घर छोटा सा था, लेकिन पक्का और पेंट शुदा था। मैंने डोर बेल पर उंगली रख दी। बजाय अंदर से जवाब आने के, गली में से ही एक बच्चा खेलते खेलते मेरी तरफ आया और पूछने लगा, आपको किससे मिलना है?
میں نے سوچا یہ بچہ اسی گھر کا ہوگا، جب ہی مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا مجھے جاسیہ سلطان سے ملنا ہے، کیا وہ اسی گھر میں رہتی ہیں؟ میرے منہ سے جاسیہ کا نام سن کر بچے کی عمر یکدم 12 سال سے 80 سال ہو گئی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر میری طرف دیکھا اور بڑے سخت انداز میں بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں، جاسیہ آپا کی شادی ہو رہی ہے، وہ مائیوں بیٹھی ہیں، اور جب ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی کی تاریخ پکی ہو جاتی ہے تو وہ کسی مرد سے نہیں ملتی۔ میرے لیے یہ خبر بڑی حیرت انگیز تھی، اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بچے سے مزید سوال کرتا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور ایک اچھی خاصی عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پہلے اس خاتون کی طرف دیکھا، پھر بچے کی طرف۔ یہ جاسیہ آپا کی امی ہیں، بچے نے اپنے سابقہ انداز میں بتایا۔ میں نے فوراً انہیں سلام کیا۔ میرا نام اسید سمران ہے، آپ کی بیٹی جاسیہ میرے ہاں کام کرتی ہیں، کئی روز سے نہیں آ رہی، میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا، تو آپ ہیں وہ مصنف، آئیے اندر آ جائیے۔ میں اندر آ گیا۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ خاتون نے مجھے وہاں بٹھا دیا، پھر سلجھے ہوئے انداز میں بولی، جاسیہ آپ کے ساتھ کام کرتی تھی لیکن اب نہیں کرے گی کیونکہ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس بات کا تو مجھے گھر کے باہر ہی پتا چل گیا تھا، اندر لا کر بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، مبارک ہو آپ کو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ خاتون تھوڑا سا مسکرا دی، پھر پوچھنے لگی، آپ چائے پئیں گے یا نہیں؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، ہو سکے تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، اور اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو کیا میں جاسیہ سے مل سکتا ہوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی تک مجھے اس گھر سے یا گھر کی مالکن کے انداز سے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ یقیناً جاسیہ شوقیہ نوکری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جاسیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا خیال تھا اس نے پیلا جوڑا پہن رکھا ہوگا اور رو رو کر آنکھیں سجا رکھی ہوں گی، لیکن سب کچھ اس کے الٹ تھا۔ وہ لان کے 3 پیس سوٹ میں تھی، آنکھوں میں ہمیشہ جیسی شوخی اور ذہانت تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ مجھے دیکھ کر یہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں اس کی آمد پہ نہ جانے بے ساختہ کیوں کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، اس نے بڑے مہمان نواز انداز میں کہا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آج آپ ہمارے گھر کی طرف کیسے آ گئے؟ مجھے پتا لگا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے، سوچا مبارکباد دیتا چلوں۔ مجھے اس کے سوال پر غصہ آیا تو میں نے طنز سے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا جاسیہ، اگر تمہیں چھٹی کرنی ہو تو مجھے بتا کر کرنا۔ جو نمبر تم نے مجھے دیا تھا میں وہاں فون کر کر کے تھک گیا۔ وہاں یا تو کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا اور اگر کوئی اٹھا بھی لے تو سوائے بچوں کے رونے کے کوئی آواز نہیں آتی۔ جی ہاں سر، مرزا صاحب کے 11 بچے ہیں، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے ایسی ہی شکایت ملی ہے۔ وہ سکون سے بولی۔ مجھے مرزا سے کیا لینا، مجھے تو تم پہ غصہ ہے، تم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اگر میں اب بھی پتہ نہ کرتا تو تم تو چند روز تک پیا سنگ سدھار چکی ہوتی۔ بس سر، مصروفیت ہی ایسی رہی، میں 1-2 روز تک آپ کو اطلاع کرنے والی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہوا کیسے؟ تم نے اس سے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ بتایا نا میں نے، سب کچھ بس جلدی جلدی میں ہی ہوا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے پہ کوئی بھی نیا تاثر نہیں تھا، نہ غم کا نہ خوشی کا۔ تمہاری شادی ہو کس سے رہی ہے؟ اپنے منگیتر سے سر۔ اوہو، میں چنچلا گیا، میرا مطلب ہے تم اسے پہلے سے جانتی تھی؟ بالکل نہیں، ایک انجانے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی؟ وہ میرے پوچھنے پہ ہنس پڑی۔ سر، یہ زندگی ہے، کوئی آپ کا افسانہ نہیں جس میں پہلے سے محبت کرنا ضروری ہو اور زندگی کا دار و مدار محبت کی کامیابی یا ناکامی پہ ہو۔ مجھے اس کے ریمارکس پہ بہت غصہ آیا، وہ جاتے جاتے بھی میری تحریروں پہ چوٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، حالانکہ سب لڑکیاں اندر سے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر مجھے تقدیر موقع دیتی تو میں اس پر اپنا آپ ثابت کر سکتا تھا۔
इतने में वो लड़का जिसने बाहर मुझसे तफ्तीश की थी लवाजमात की सादा सी ट्रॉली ले आया। जासिया चाय बनाने लगी। ये लड़का तुम्हारा भाई था? उस लड़के के जाने के बाद मैंने जासिया से पूछा। ये मिर्जा का चौथा बेटा था। मेरा ना कोई भाई और ना बहन। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। शायद मैंने आपको बताया भी था। मोहल्ले के सब बच्चे मुझे आपा कहते हैं क्योंकि मोहल्ले के बच्चों में सबसे बड़ी हूँ। तुम अभी तक अपने आप को बच्चों में शुमार करती हो? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। जासिया हंस पड़ी, फिर मेरी तरफ चाय बढ़ाते हुए बोली, वैसे सर, आपकी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी गैर हाजिरी को इतनी अहमियत देंगे और घर तक चले आएंगे। बाय द वे, मैंने आपसे कोई उधार तो नहीं ले रखा? मैं हंस पड़ा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई तो पूछने आ गया, और कई रोज से तो ज्यादा ही कमी महसूस हो रही थी। आज मुझे उसकी तारीफ करने में कोई घाटा या नुकसान नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जी भरकर उसकी तारीफ की। वाकई जासिया, तुम एक सही लड़की हो। मैं कितने ही मददगार रख लूं, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे तारीफ करने पर वो हमेशा की तरह चमक उठी और कहने लगी, मैं भी सर आपको हमेशा याद रखूंगी और जिंदगी में फुर्सत मिली तो आपसे मिलने आया करूंगी। मेरा ख्याल था कि उसे शादी के बाद मुझसे मिलने की फुर्सत कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे जासिया को भूल जाना चाहिए। लेकिन जासिया भूलने वाली चीज नहीं थी। हर कदम पर मुझे उसकी तनकीद, जो मेरे लिए इस्लाही पहलू रखती थी, याद आ रही थी। मैंने उसके ख्याल को चटकने की बहुत कोशिश की। क्या मैं जासिया से पहले राइटर नहीं था? मुझे अपनी ये कमजोरी बहुत बुरी लग रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि नई हेल्पर रख लूं, लेकिन जासिया की आदत ने मुझे सबसे बेजार कर दिया था। 2.5 माह के बाद जासिया को आज अपने घर में देखकर मैं हैरान रह गया। इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिल गई, जबकि आपका ख्याल होगा कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। हाँ, ऐसा हो सकता था, बशर्ते ये कि मेरी शादी हो जाती, लेकिन चूंकि मेरी शादी कैंसिल हो गई है, सो मुझे मसरूफ तो रहना है। शादी कैंसिल हो गई? ना सिर्फ कैंसिल, बल्कि किस्सा बिल्कुल खत्म। वो मजे से बोली। क्या मतलब? मेरी हैरत जायज थी। दरअसल सर, जिस लड़के से मेरी मंगनी हुई थी वो किसी और को पसंद करता था। उसके वालिदैन ने जबरदस्ती मंगनी तो कर दी, लेकिन उसे शादी के लिए रजामंद नहीं कर सके और ये रिश्ता टूट गया। उसने इत्मीनान से कहा, और मैं उसके इत्मीनान पर हैरान रह गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्या मतलब सर? मतलब ये कि तुम्हें अपनी इंसल्ट महसूस नहीं हुई? इसमें इंसल्ट की क्या बात है सर? वो पहले से किसी और को पसंद करता था। उसके वालिदैन को ये बात सोचनी चाहिए थी। इंसल्ट मेरी नहीं, उसके वालिदैन की हुई है। और शायद मेरी इंसल्ट तब होती जब मैं उस लड़के में इन्वॉल्व होती, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रिश्ता खत्म करने में मेरा अपना हाथ है, क्योंकि उसने मुझसे खुद राब्ता किया था। क्या ऐसा तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है? ऑफ कोर्स। आपका क्या मतलब है? क्या रोज मेरी मंगनियां होती हैं और टूटती हैं? लाहौल वाला। मंगनियां ना हुई, कौमी असेंबली हो गई। मैं हंस पड़ा और तवक्कुफ से बोला, चलो ये भी अच्छा हुआ कि तुम खुद इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थी, वगरना तुम इस वक्त बेहद दुखी होती। वो हंस पड़ी और बड़े एतमाद से बोली, मैं इन्वॉल्व हो भी नहीं सकती थी। खैर, ये बात तो रहने दो। क्या नाम बताया था तुमने अपने मंगेतर का? हमजा। हाँ, अगर हमजा साहब तुम में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते तो तुम्हारा इन्वॉल्व हो जाना फितरी सा था। सर, कहानियों और हकीकी किरदारों में बड़ा फर्क होता है। आप क्या समझते हैं, अगर हम मिलते जुलते तो मैं उसे पसंद करने लग जाती? ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है कि मुझे मर्दों की जात से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन शादी तो तुम्हारी किसी मर्द से ही होगी। बेशक, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मर्दों की मोहब्बत पे ज्यादा एतबार नहीं है। क्या किसी मर्द ने तुमसे बेवफाई की है? वो हंस पड़ी और लापरवाही से बोली, कोई वफा करता तो बेवफाई की नौबत आती। मैं फौरी भांप गया, इस लड़की का मसला कुछ भी नहीं, मामूली सी बात है। ये लड़की खुद से मोहब्बत करती है, सिन्फ मुखालिफ को इग्नोर करके अपने आप को अरफा महसूस करती है,
और हकीकत तो ये है कि कोई मर्द इसके करीब आया ही नहीं, तो वो इस जज्बे को कैसे महसूस कर सकती थी। और मैंने उसी वक्त इरादा किया, क्यों ना इस लड़की के साथ एक खेल खेला जाए, एक मोहब्बत का खेल। अगर वो अपनी जात से मोहब्बत करती थी तो मैं कौन सा अपने दायरे से बाहर था, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्यों ना अपनी इस कमजोरी को इस मौके से फायदा उठाते हुए दूर फेंक दूं, अपनी जात से बाहर तो निकलूं। आखिर कब तक मैं ऐसा ही रहूंगा, डरपोक और बुज़दिल। जासिया अगर मेरी इंसल्ट भी करेगी तो क्या है, इस चार दीवारी में ही तो होगा सब कुछ, कौन देख रहा है। ये ख्याल कितना खुशकुन था। मैं एक लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ, हालांकि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मेरा दिल चाहता था मैं उससे इज़हारे मोहब्बत करूं और अपने जज्बात का रंग उसके चेहरे पे देखूं। जासिया ने फिर बाकायदगी के साथ आना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उसकी जात में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। यानी वो कपड़े कैसे रंगों के पहनती है, मैं उसके इंतखाब की गाहे बगाहे तारीफ कर देता। नाजुक मगर सांवली सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली मिस जासिया सुल्तान मेरे लिए एक खिलौना थी, जिससे मैंने खेलना शुरू कर दिया था। मैं जानता था इस अमल से मैं खुद को सिर्फ जुर्रत के करीब कर रहा था। कलम के साथ किरदारों को खिलाता हूँ, जरा खुद भी तो खेलूं। और फिर ये खेल शुरू हो गया था। सरमद को मेरी दिलचस्पी का अंदाजा हुआ तो एक रोज उसने अकेले में मुझे आन लिया। मुझे तो मालूम था ऐसा तो जरूर होगा। मैं हंस दिया। जब वो मुझे ज्यादा तंग करने लगा तो मैंने उसे सच बता दिया। वो भी खुद लापरवाह और खिलंडरा सा था। मेरी बात से बहुत महसूस हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे जासिया से उनसियत होती जा रही थी। मैं लिखवाते लिखवाते उसके हाथ देखने लग जाता। सब खवातीन के हाथ ऐसे ही होते हैं या जासिया के हाथ इतने मुलायम और खूबसूरत हैं? तब जासिया कलम बजाती और मुझे मुतवज्जा करती। सर, आप मंजर में बहुत ज्यादा खो जाते हैं। मैं खफीफ सा हो जाता और फिर लिखवाने लगता। इसी तरह आज हुआ। मैं बोल रहा था और जासिया का कलम चल रहा था। सबीन इतनी खूबसूरत थी कि राहील उसे देखता तो देखता रह जाता। एक दिन राहील ने सबीन से कहा, तुम्हें देखकर दिल करता है शायर बन जाऊं और तुम्हारे बारे में और सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखूं। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी। सबीन, तुम क्या हो? आई लव यू, आई लव यू। सर, जासिया जोर से चिल्लाई और मैं जो राहील बना सबीन और जासिया को एक किए बैठा था उछल पड़ा। उसने अपने हाथ से मेरा हाथ हटाया और जतलाने वाले अंदाज में बोली, सर, सबीन निहायत काली और भद्दी लड़की है और राहील तो अंधा हीरो है। मगर मैं तो अंधा नहीं हूँ। क्या मतलब? जासिया की आंखें फैल गईं। मेरा मतलब है कि अंधों के जज्बात नहीं होते, मैंने जरा रोब से कहा। वो अंधा है तभी तो काली और भद्दी की तारीफ कर रहा है। ओह, जासिया हंस पड़ी। सिलसिला तहरीर फिर चल पड़ा। मैं जासिया को देख रहा था और बस बोल रहा था, सर अब बस कीजिए। जासिया ने उकताकर कलम रख दिया। इस कल्लो की तारीफ में तकरीबन 3 सफ़े जाया हो चुके हैं। तुम तो काली नहीं हो जासिया। व्हाट डू यू मीन सर? मेरा मतलब है सबीन भी तुम्हारी तरह है, फराख दिल, खुश अखलाक, खुश मिजाज। सर, आप भी तो फराख दिल हैं। मुझे भूख लग रही है, कुछ पैसे होंगे? एक तो तुम्हारी ये पैसे मांगने की आदत बहुत बुरी है। सर, खुश मिजाज रहने के लिए जरूरी है कि अपनी मनपसंद अशिया खाई जाएं। अच्छा, ऐसा करते हैं, दोनों इकट्ठे बर्गर खाते हैं। तुम ऐसा करो, चाय बनाओ, मैं बर्गर लेकर आता हूँ। सर, ये पैसे तनख्वाह में से तो नहीं कटेंगे? वो खौफजदा होकर बोली तो मैं हंस पड़ा। रफ्ता रफ्ता मुझ में और जासिया में बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही थी। अब मैं उनके घर भी आने जाने लगा था। उसकी माँ को देखकर लगता कि वो सिर्फ घर के कामकाज करने के लिए दुनिया में आई है और बाप इबादत करने के लिए। वो लोगों को तावीज बनाकर देता था, झाड़ फूंक भी करता। यूं सारा दिन उसके पास घर के लिए कोई वक्त ना होता। ऐसे में वाकई जासिया को घर के माहौल से घुटन होती होगी, तभी उसने 17 सहेलियां और खुद कफालत सेशन रख लिया था। उनका जरिया आमदनी उसके बाप का लोगों का रूहानी इलाज और किराए की 3 दुकानें थीं। जाहिर है इस लगी बंधी रकम में क्या अखराजात पूरे होते होंगे। मैंने जासिया की तनख्वाह बढ़ा दी। वो मुझसे बहुत खुश थी और मैं भी उससे बहुत खुश था।
मैं उसकी तारीफ करता तो वो बुरा न मानती, लेकिन मुझे इस बात का क्या फायदा था। मैं एक लड़की की तरह उसके चेहरे पे अपने जज्बात के रंग देखना चाहता था। आज वो काला सूट पहन कर आई थी। काले कपड़ों में उसका गंदुमी रंग सोने की तरह खिल रहा था। उसकी स्याह आंखें आज और भी पुरकशिश लग रही थीं। काला रंग तुम्हें बहुत सूट करता है। शुक्रिया सर। कभी आधी रात को तुमने पूरा चांद देखा है? मैं उसका चेहरा देखते हुए जज्ब से बोला। सर, अगर मैंने कभी ऐसा किया तो अम्मा पागल समझकर घर से निकाल देंगी। वो लापरवाही से बोली तो मैंने सर पकड़ लिया। जासिया, तुमने उम्र कहाँ गुजारी है? आधी दधियाल में और आधी माँ बाप के पास। क्यों सर? ऐसे ही जी चाह रहा था तुम्हारे रिश्तेदारों को सलाम करके आऊं, मैंने चिढ़कर कहा और काम शुरू कर दिया। जासिया, तुमने कभी बाल नहीं खोले? मैंने उसके लंबे गहरे स्याह बालों को देखते हुए कहा। सर, रोज खोलती हूँ नहाने के लिए, और जब अम्मा को मुझ पे प्यार आता है तो घंटों जुएं देखती रहती हैं। सर, ये हमारे यहाँ प्यार करने का अजीब ही अंदाज है। किसी पर जैसे ही प्यार आया, झट पकड़ा, आरी और बाल चुनने बैठ गईं। एक नई नवेली दुल्हन के साथ जब बहुत सारी खवातीन ने बैक वक्त इज़हार मोहब्बत का ये अंदाज अपनाया तो दूल्हा घर से भाग गया। न जाने कितनी जुएं होंगी दुल्हन के, जो सारी औरतें वफूर शौक से जुट गई हैं। माय गॉड! जासिया अपने लतीफे पे खुद ही दांत निकाल रही थी और मैं उसे गुस्से से देख रहा था। आज बस मैंने सोच लिया था, उसे इस नूरा कुश्ती में चित न कर दूं तो उसैद नाम नहीं। आज उसने हल्के आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। उसकी कलाइयां सादा सी चूड़ियों से भरी हुई थीं। वो मेरे सामने थी और मैं उसके सामने। मेरा दिल चाहा उसकी चूड़ियों को छेड़ूं और फिर अचानक मेरी उंगली उसकी चूड़ियों को गिनने लगी और फिर उसकी कलाई तक पहुंच गई। जासिया अचानक पिदक गई। उसके चेहरे पे खफीफ सा रंग था। उसने जल्दी से मेज पर से हाथ उठा लिया और हैरत और झिझक के मिले जुले तासुरात से मुझे देखने लगी। हैरत की बात है, मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई और मैं ठिठाई से उसकी तरफ देखता रहा। शायद उसकी झिझक ने मुझे उस पर हावी कर दिया था। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत और मुलायम है जासिया। और दूसरे ही पल चटाक से जासिया का जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे आ लगा। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। सर, ये हाथ वक्त पड़ने पे खुरदुरे भी हो जाते हैं। मैं चौंक कर उठ बैठा। रात के 2 बज रहे थे। क्या जासिया मेरे हवासों पे इतनी सवार हो गई थी कि मुझे रात दिन उसके सपने दिखाई देने लगे थे? मैंने एक सर्द सी झुरझुरी लेकर अपने गाल पे हाथ रखा। शुक्र है कि सपना था, हकीकत नहीं। मैं लाहौल पढ़कर वापस लेट गया। आज जासिया ने वाकई आसमानी सूट पहन रखा था। मुझे रात का ख्वाब याद आ गया। मैंने सोचा कहीं ख्वाब सच साबित न हो जाए, इसलिए आज जासिया से मोहतात रहूंगा। जासिया ने बाल खोले हुए थे, हालांकि सपने में वो चोटी के साथ थी। क्या वजह थी? जासिया मेरे हवासों पे छाती जा रही थी। मैं उसे कनखियों से देखता रहा। सर, अदीब लोग निहायत बुज़दिल होते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कलम से करते हैं। उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं खिसिया सा गया। शायद उन्हें थप्पड़ से डर लगता है। क्या मतलब सर? कुछ नहीं, मैं जल्दी से बोला। क्यों ना जासिया हम बाहर लॉन में बैठकर काम करें? मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? बाहर तो बड़ी सख्त धूप है। उसके चेहरे पे मायनेखेज मुस्कुराहट थी। मैं सर खुजाने लगा। शायद तुम्हारे बालों की घटाएं मेरे हवासों पे छा रही हैं। मेरी असली बुज़दिली मेरा गला घोंट रही थी, लेकिन हिम्मत करके मैंने घुटी घुटी आवाज में कह दिया। वो कहने लगी, सर, मेरे हवास अभी कायम हैं। मुझे किसी कहानी का किरदार मत समझिएगा। जासिया, आई लव यू। मैंने कहने में 1 सेकंड लगाया। जासिया ऐसे उछलकर खड़ी हो गई जैसे उसकी कुर्सी के नीचे बम फट गया हो। मुझे क्या मालूम था, दिल लगी दिल की लगी बन जाएगी। सर, मेरा ख्याल है मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। आप कहानी लिखवाते लिखवाते कहानी का किरदार बन रहे हैं। तो तुम इस कहानी को मुकम्मल कर दो ना। वो सचमुच बौखला गई और सचमुच मुझे बहुत मजा आया। आई एम सॉरी सर, मैं चलती हूँ। वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा जज्बा सादिक तो था, उस पर असर क्यों ना करता। उसने निगाहें नीची कर ली।
जासिया, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और दूसरे ही पल निगाह झुका ली। थप 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 ताली की आवाज पे हम दोनों ने बैक वक्त मुड़कर देखा। सरमद सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बात से साबित हुआ सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। मैं जल्दी से संभल गया। जासिया खफीफ सी हो गई। वो ताली बजाते बजाते हमारे करीब आ गया। बहुत जबरदस्त सिचुएशन थी अगर हकीकत होती तो। यानी अब हमारा हीरो भी हीरो बनता जा रहा है। उसने मुझे थपकी दी। जासिया कभी उसकी और कभी मेरी तरफ देख रही थी। मिस जासिया, परेशान ना होइए, ये महज एक खेल था जिसमें ये बेवकूफ कामयाब होना चाहता था। सो हो गया। खेल? जासिया का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बौखला गया, जबकि सरमद लापरवाही से हंस रहा था। तो आप क्या समझ रही हैं? ये आपसे वाकई मोहब्बत करने लगा है? जस्ट फॉर जोक, ये महज तजर्बा कर रहा था आप पर। तस्लील के एहसास से जासिया का चेहरा यकलख्त सुर्ख हो गया। ये आज तक किसी लड़की से इजहार मोहब्बत नहीं कर सका था। आज इसने जुर्रत की तो आप पर। इस क्रेडिट की हकदार आप हैं। खैर, इसने आपको भी एक नए एहसास से रोशनास करा दिया है। जासिया की आंखें पानियों से भर गईं। उसने अपना पर्स उठाया और एक लम्हा भी जाया किए बगैर मेरे कमरे से निकल गई। जासिया, सुनो तो सही। मैं तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन वो हवा की तरह गायब हो गई। ये क्या बदतमीजी थी? मैं सरमद पे चढ़ दौड़ा। बदतमीजी? यार, ख्वामखा लड़की खुशफहमी का शिकार हो जाती। मैंने जल्द ही पोल खोल दिया। तुम बदतमीजी कह रहे हो? तुमने बहुत गैर अखलाकी हरकत की है। मुझे बहुत गुस्सा था। और तुम जो अखलाक के दायरे से बाहर हुए जा रहे थे? शट अप। तुम्हें मेरे मामलात में यूं दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। ये मेरा और उसका जाती मामला था। जाती मामला? सरमद हैरान होकर हंसा। कल तक तो एक ड्रामा था, अचानक जाती मामला कैसे हो गया? मैं उसे सचमुच पसंद करने लगा हूं, मैंने इकरार किया। ए भाई, सरमद ने मुझे झंझोड़ा। क्या तुम होश में हो? हाँ, मैं होश में हूं, मैं चिल्लाया। ये सच है कि मैं उसके साथ ड्रामा कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ड्रामा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सरमद। तुमने उसके दिल को ही ठेस नहीं पहुंचाई, मुझे भी उसकी नजरों में जलील कर दिया है। सरमद चुपचाप मुझे देखता रहा। आई एम सॉरी, मुझे ये सब मालूम नहीं था। अगर तुम इतने ही सीरियस थे तो उसके वालिदैन के पास प्रपोजल भेजते। हर काम का एक वक्त होता है। मैं स्विच हो गया। अब वक्त जाया ना करो, अपना प्रपोजल भेज दो और बावकार तरीके से शादी कर लो। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र इश्क लड़ाने की तो है नहीं। वो फिर गैर संजीदा होने लगा था। न जाने वो क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे जासिया की फिक्र थी। अगले ही रोज मैं उसके घर मिलने गया और उसने मिलने से इनकार कर दिया। जासिया मेरा चैन सुकून सब कुछ लूट कर ले गई थी। क्या मैं दूसरी बार भी यूं ही तहीदस रह जाऊंगा? मैंने आपा को फोन किया, जिन्हें सिर्फ साल में 2 बार मेरी शादी की फिक्र सताती थी और फिर भूल जाती। जैसे ही आपा को पता चला कि मैं शादी के लिए रजामंद हो गया हूँ, वो कोयटा से सरपट दौड़ी आई। मैं बता नहीं सकता वो कितनी खुश थीं, लेकिन मैं तो तब खुश होता जब जासिया हाँ कर लेती। वो जासिया के घर सवाल लेकर गई, लेकिन वहां से इनकार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जासिया इतनी कठोर साबित होगी। एक बार नहीं, मैंने कई बार आपा को भेजा, लेकिन मुसलसल इनकार होता रहा। आपा इस प्रपोजल से उकता गई। एक तो वो खासे अमीर शख्स की बीवी बन चुकी थी, इसलिए जासिया के घर वालों के ज्यादा नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकी। दूसरे, जासिया का घराना मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था, जो उन्हें अपनी शख्सियत के शायाने शान नहीं लग रहा था। कहने लगी, तुम्हें भी पूरी दुनिया में एक वही लड़की मिली थी? 32 साल की उम्र में शादी की हामी भी भरी, तो उस मौलाना की बेटी से, जिसकी ना शक्ल ढंग की है और ना मिजाज। माँ ऐसी है उसकी जैसे 16वीं सदी की रूह हो। उससे भी अच्छी अच्छी बहुत लड़कियां हैं, अगर तुम कहो तो बात करूं। मुझे आपा की बात बहुत बुरी लगी। अब मैं आपा को सारी बात तो नहीं बता सकता था। सरमद मेरी परेशानी को देखकर कहने लगा, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं बनफ्से नफीस मोहतरमा से माफी मांगाया और उसे 1000 हा यकीन दिलाया कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वो तो ऐसे मसनद पे बैठ गई है जैसे बहादुर शाह जफर की पोती हो।
یا سلطان اعظم سے اس کا شجرا ملتا ہو۔ یار میں تو کہتا ہوں خواہ اس چیل کو شاہین کا رتبہ نہ دو اور جہاں آپا کہتی ہیں شادی کر لو۔ تم نے چیل کسے کہا؟ مجھے سرمت زہر لگ رہا تھا۔ اسے جسے تم بھولی بلبل سمجھ رہے ہو۔ اگر اپنا وقار اور اپنے فن کی بقا چاہتے ہو تو کسی اچھی سی جگہ چپ چاپ شادی کر لو۔ سمجھ لو جاسیہ تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ کیسے یقین دلاؤں اس دل کو جو صرف جاسیہ جاسیہ پکارتا رہتا ہے۔ میرے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ نیہا کی محبت خاموش محبت تھی، لیکن جاسیہ سے میں اعتراف کر چکا تھا، اور جاسیہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس سے میں نے اعتراف محبت کیا تھا، یعنی اپنی زندگی بھر کی پونجی اس کے حوالے کی تھی۔ پھر کیسے اس دل کو سنبھالوں، سمجھاؤں؟ کئی دن کئی راتیں بے چین مضطرب گزر گئیں اور مجھے آپا کے فیصلے کے آگے ہار ماننا پڑی۔ آپا نے میرے لیے ایک اور لڑکی دیکھ لی تھی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، خوبصورت تھی، اور نہ جانے اس میں کیا کیا خوبیاں تھیں، لیکن وہ جاسیہ نہیں تھی، اور شادی کا دن بھی طے ہو گیا۔ شادی بڑی سادگی سے انجام پائی۔ سادگی کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کا گھرانہ مذہبی تھا۔ شادی کی رسومات میرج کلب میں انجام پذیر ہوئیں۔ رات گئے مہمانوں کو رخصت کر کے ہم دلہن کو گھر لے آئے۔ میری بھابیاں اور بہن دلہن کو میرے کمرے میں لے گئیں۔ میں اپنے قریبی دوستوں میں کھرا بیٹھا تھا۔ محفل جمی ہوئی تھی، لیکن میرا دل ویران تھا، اور میں اپنے دل کو اس نئے فیصلے سے ہم آہنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب مجھے اس اجنبی خاتون کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ کمرے میں داخل ہو کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کاش یہاں جاسیہ ہوتی تو یہ کمرہ جو رنگ برنگی خوشبوؤں سے معطر اور پھولوں سے آراستہ ہو کر بھی مجھے زہر لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگتا۔ مگر نہیں، محبت میں دوسری بار ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد مجھے ہیٹرک سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری بیزاری کو دیکھتے ہوئے یہ خاتون جو میری بیوی بن چکی ہے مجھ سے دل برداشتہ ہو کر مجھے چھوڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہے زندگی کی اس صورت کو قبول کر لوں۔ اور پھر میں کرسی کھینچ کر بیٹ کے قریب بیٹھ گیا اور سلسلہ کلام شروع کیا۔ آپ اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا۔ میں نے بنا پڑھے ہی نکاح نامے پہ دستخط کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ کو میرے دل میں جگہ پانے کے لیے خود محنت کرنا پڑے گی۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس وقت بہت بکھرا ہوا ہوں۔ آپ سے پہلے میری زندگی میں 2 لڑکیاں اور بھی آ چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آخری لڑکی ہیں۔ آپ کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی، میں نے شکستہ سے انداز میں کہا۔ ذرا ان 2 لڑکیوں کے نام بھی بتا دیجیے۔ گھونگھٹ میں سے بڑی سریلی آواز آئی۔ میرا خیال ہے آپ کو ان ناموں اور انسانوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ چمک کر پوچھا گیا تھا، ساتھ ہی گھونگھٹ بھی اٹھ چکا تھا۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ تو تم کیوں پسند نہیں آئی؟ جاسیہ نے شرارت سے پوچھا، اور میں بتا نہیں سکتا میری کیا حالت تھی۔ خوشی کے مارے میں چکرا گیا۔ کئی لمحے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کروں۔ اتنی بڑی خوشی پا کر کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ اسی دیوانگی میں نے جاسیہ کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ جاسیہ، جاسیہ میری جان، I love you, I love you۔ تم نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہیں پا کر میں کتنا خوش ہوں۔ جاسیہ میری دیوانگی وحشت پہ سراسیمہ رہ گئی۔ یہ روپ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میرے جنون سے اتموئی ہو گئی۔ تب مجھے خیال آیا تو میں کچھ نارمل ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ میری خوشی چھلکی جا رہی تھی۔ جب آپ میرے ساتھ ڈرامہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ بدلہ لیتی؟ وہ بہت دیر کے بعد بولی۔ میں واقعی تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کب دل کی لگی بن گئی۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اچانک خیال آیا تو میں جلدی سے بولا۔ اس لیے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں سرمت کے لفظوں پہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو بس ایسا ہی ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اسے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رکھا تھا۔ سر، اگر آپ کے اظہار محبت پہ میں خاموش ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں نے وہیں آپ کو دل دے دیا تھا۔ اب بنو نہیں،
اگر دل نہیں دیا ہوتا تو تم آج یہاں نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ وہ ذرا سا چینپ گئی لیکن بات بناتے ہوئے بولی، آپا کے بے حد اصرار پہ ہاں کی تھی میں نے۔ یعنی سب نے مل کر مجھے الو بنایا؟ الو اور چیل کی کبھی نہیں بنتی، ذرا سنبھل کر رہنا۔ آپا اچانک کمرے میں داخل ہوئی تو ہم دونوں ہی سنبھل گئے۔ ان کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ امی کی دی ہوئی نشانی، تمہاری دلہن کو پہنانے آئی ہوں، آپا نے جاسیہ کی کلائیوں میں کنگن ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں کو دعائیں دینے لگیں، خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ یعنی آپ بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئی تھی؟ میں نے آپا سے شکوہ کیا۔ بھئی مجبوری تھی، اور وہ مجبوری پتہ ہے کیا تھی؟ جاسیہ کی 17 سہیلیاں، وہ 17 تھیں اور میں اکیلی۔ بات تو ماننا تھی، آپا نے لاچاری سے کہا۔ آپا، آج کے بعد سے جاسیہ سے کہہ دیں اپنی 17 سہیلیوں کو بھول جائے، میں نے ذرا روب سے کہا۔ مگر کیوں؟ جاسیہ نے دبا دبا احتجاج کیا۔ اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے۔ آپا، جاسیہ نے مدد طلب نگاہوں سے آپا کی طرف دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر فارغ ہو گئیں۔ بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب اسے خود ڈیل کرو۔ اور ہاں، ذرا یہ خیال رکھنا کہ یہ اب تمہارے سر نہیں، سرتاج ہیں۔ مجھے کلف لگ گیا، جاسیہ کا منہ پھول گیا۔ آپا کمرے سے جا چکی تھی۔ مجھے اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی اور پھر میں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ میری زندگی کی کہانی کو تم نے بہت خوبصورت انجام دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، میں نے بڑے جذب سے کہا۔ میری 17 سہیلیوں پر سے پابندی ہٹا کر جواب پٹ سے آیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اب کی بار جاسیہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کا جلد رنگ پورے کمرے کو معطر اور تابندہ کر رہا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔